to you. Now we are learning that our security forces have decided to cover the hilly areas in Jammu and Kashmir, and this entire operation is happening almost after 2 decades. More than 50 locations will be covered, scouted by the Indian Army, by the security forces, with equal distance to tackle terror. A lot of this information that we are bringing for our viewers, because remember, the topography remains a villain. That's been the constant rallying point when it comes to intel, and also how the terrorists have had a vantage when it comes to the security forces, and that's why they find it easier to be holed up in these areas. This information is being brought to us by our colleague Ankur, who's joining us on the broadcast. Ankur, more details about this, please. Yeah, Greya. So in a major development, security forces have been asked to cover hilly areas in 3 regions in Jammu and Kashmir. These 3 regions are Doda, Poonch and Rajouri. Doda is currently witnessing a encounter, and already 4 Indian Army jawans have been killed in that. Officials are claiming that almost after 2 decades, a large quantity of troops will be deployed in these areas with required vehicles, weapons and other required arrangements. Without sharing much details about the move, a senior official has said that almost 50 locations, more than 50 locations have been identified for the domination of security forces, and the approach is to address the terror activities in these strategically critical areas. A robust security presence across all identified locations. These districts will be established in next few weeks, and the primary object will be to create a well-coordinated security grid designed to cover equal distance between each other location. All right, Ankur Sharma, thank you so much for joining us with all those details. I beg your pardon. Let me take this back to Akash. Akash, this very point that you were talking about intel, I'd like to also add to the question that I was asking you earlier. Why 2 decades? Why did the security forces not go into these hilly areas that Ankur just briefed for our viewers? Griha, you need to understand this, that back in 2006, we had Operation Sarvinash in the same area, in Rajouri and Poonch. And since then, we had, this area peaceful. All those terrorists who were, present in this area, were either killed or, were killed, in fact. After 2006, we saw that, in fact, RR units were very much deployed in these areas, and, Army Jawans were very much there. They used to dominate the area. They used to dominate the ground. And they had a huge network. Akash, I'm really sorry. I'll have to interrupt you again. We have our colleague Komal, who is reporting live from the very area where the encounter is currently raging on. We'll quickly go to her report and come back to you. कोमल, आप बहुत करीब हैं जहां पे इनकाउंटर हो रहा है. अभी हमने आपकी ग्राउंड रिपोर्ट भी प्ले आउट की थी, जहां पे आपने बोला था ये बकरवाल घरों को ये इस्तेमाल कर रहे हैं टेररिस्ट, वहां पे छुपने का उनको मौका मिलता है, रेकी कर पाते हैं. और क्या जानकारी दे सकती हैं जिस तरह से इनकाउंटर हुआ और होने की कोशिश हुई, लेकिन हमारे जवानों को अपनी जानों से हाथ धोना पड़ा? देखिए, आतंकियों ने अब लगातार रैकी कर रहे हैं, हमला कर रहे हैं, लेकिन नई टेक्निक से हमला कर रहे हैं. नई टेक्निक से छुपने की भी उनकी साजिश नई दिखी है, क्योंकि आतंकी पहले घने जंगलों में छुपते थे, वो हाइड आउट में छुपते थे, वो नदी नालों के जरिए वो घुसपैठ करते थे. लेकिन अब जो आतंकी, जो कि ज्यादा तादाद में आतंकी जो है वो जम्मू संभाग में घुस चुके हैं, वो बहुत तेज दिमाग वाले हैं. उनका ये जो दिमाग है वो इतना तेज है कि अब वो सेना के नक्शे कदम पर चल रहे हैं. जहां सेना, सुरक्षा बल, एसओजी की टीम यहाँ पर इलाके में सर्च करती थी, कच्ची बनी ढोक पे आसपास जो है वो वहां पर छुपकर, वहां पर रुककर आतंकियों को खंगालती थी, आतंकियों को ढूंढती थी, या फिर जहां पर आतंकियों ने हथियारों का जखीरा रखा था उनको ढूंढती थी. लेकिन अब उन्हीं के नक्शे कदम आतंकियों ने भी पहले स्थानीय लोगों से रैकी की, सारी जानकारी ली कि कहां सेना के जवान पहुंचते हैं. आप तस्वीरों में दिखाएं कि पिछले दिनों डोडा में 3 आतंकी ढेर हुए थे. ये घर थे ऐसे पहाड़ी कच्चे घरों में जो कि गुज्जर बकरवाल समुदाय के लोग इस समय कश्मीर में रहते हैं. तो इन घरों में आतंकी छुप रहे हैं, वो नई टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो हमले की साजिश हो, हमला करने की सेना के वाहनों पर लगातार एक के बाद एक हमला करने की नई टेक्निक हो, या फिर छुपने की नई टेक्निक हो. तो सुरक्षा बलों के साथ उनके नक्शे कदम पर चलने का जो नई साजिश रची. मैं आपको बता दूं, इस समय हम ग्राउंड जीरो पे हैं. गाड़ियां आपने सेना की देखी, आशु आप दिखाइए कि ये जो सेना के जवानों की गाड़ियां देखिए किस तरीके से यहाँ पर रोड बंद किया है, क्योंकि ये आखिरी उस ग्राउंड जीरो
टॉप पे हम लोग मौजूद हैं, जहां पर सुरक्षा बल जो थे वो अपने भारी भरकम हथियारों के साथ जो उन टॉप पर जा रहे थे, वहां टॉप पे जा रहे थे। यहां पर उनको लगा कि यहां पर आतंकी हो सकते हैं, लेकिन ये जो कच्चा रास्ता आप देख रहे हैं, यहां से आगे गाड़ी नहीं जाती। जूम करके तस्वीरों में दिखाने की कोशिश करेंगे कि यहां से छोटी भी गाड़ी यहां से नहीं जाती। आसपास के इलाकों में लोग रहते हैं और यहां से किसी भी हमें भी नहीं जाने दिया जा रहा है और यहाँ के स्थानीय लोगों को भी आगे जाने की अनुमति नहीं है, क्योंकि कुछ ही दूरी पर ये जो टॉप आप देख रहे हैं, इस टॉप पर आतंकियों ने ताबड़तोड़ जो फायरिंग की, क्योंकि टॉप पे थे जवान जो थे वो यहाँ से ऊपर चढ़ रहे थे, हथियारों का जखीरा उनके पास था। तो इस तरीके से जैसे ये जवान हमारे साथ है, हथियारों का जखीरा इनके पास है, इसी तरह से हथियारों के जखीरे के साथ यहाँ से वो काफी ज्यादा तादाद में यहाँ से गए और यहाँ से जाने के बाद तुरंत वो पहाड़ी पर पहुंचे और पहाड़ी पर पहुंचने के साथ ही आतंकियों ने देखा कि कोई गतिविधि हुई है और यहाँ पर किसी की एंट्री हुई है, पहाड़ी कोई चढ़ रहा है, तो उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग कर दी और बदले में भारतीय सेना के जवानों ने भी ताबड़तोड़ फायरिंग की। लेकिन अफसोस की बात यह कि हमारे जवानों ने जो है वो अपनी जान गंवाई है। उन्हें नहीं पता था कि आतंकियों को ढूंढने के लिए, उनको निस्ते नाबूद करने के लिए वो इन पहाड़ियों पर चढ़ रहे हैं और तिरंगे में लिपट कर वो आतंकियों की गोली खाने के बाद घर लौटेंगे। तो ये जो इलाका है, ये सारा इलाका जो कॉर्डन किया हुआ है, हेलीकॉप्टर से भी नजर बनाई हुई है, जमीन से लेके आसमान तक खंगाला जा रहा है और यही कहना है कि जब तक उन आतंकियों को, जो कि ज्यादा तादाद में जम्मू संभाग में घुस चुके हैं, जंगलों में घुस चुके हैं, चाहे कठुआ की बात करें, उधमपुर की बात करें, चाहे वो इन घने जंगलों के डोडा की बात करें, जब तक आतंकियों को निस्ते नाबूद नहीं किया जाएगा, यहाँ से सुरक्षा बल जो है वो हटेंगे नहीं, बल्कि डटे रहेंगे। राइट कोमल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। We'll keep coming back to our colleague Komal, who is currently very close to where this encounter really happened, and she is bringing to us the ground report of what exactly transpired when that firefight happened between the terrorists and our brave soldiers. We are slipping into a very short break and coming right back with lots more that's in store on the broadcast.